From taking various interviews of judicial magistrates and APOs to becoming a judicial magistrate herself, today we are going to witness the conversation with Shweta Raj Lakshmi, who herself has qualified 32nd Bihar Judicial Service exam in a very first attempt. Hello, my name is Viraj Deva and I'm a law student of Symbiosis Law School, Pune, and I welcome you all to the YouTube channel of Kautilya Law Academy, Patna. So before ma'am we'll start the conversation, I'd really like to thank Kameshwar sir and Kautilya Law Academy to giving me this opportunity to have the conversation with you, because she is not only my mentor or college senior, but she is also my elder sister. So ma'am, shall we begin the conversation? Sure. First of all, thank you so much, Viraj, for this lovely introduction. And before we proceed to the conversation, I would like to express my gratitude to Kautilya Law Academy, the whole institution, and especially Kameshwar sir for giving me this opportunity for not only conducting interview of judicial magistrates but also APOs from last 2 years. And today I think it's a very big day for me that from switching the seat, the chair from there to here, it's a very big day for me that I have got this opportunity to express my views on this examination as a judicial officer. So thank you so much to the whole team first of all. And yes, we shall begin now. So ma'am, we'll start this conversation from the very beginning of your preparation. Not even preparation, your journey. So my first question will be, how come you choose this legal field? Okay, so actually I got admission in Symbiosis Law School, Pune in year 2017. I was very much interested in legal field since very beginning, since my school days. So in 2017 I appeared for SLAT examination. You must be knowing about Symbiosis Law Entrance Test. So I appeared there, and from the very beginning, from the first year of my college, I was very sure that I have to prepare for judicial services, and that also Bihar specific. I always wanted to be a judicial officer in Bihar. So this is how my journey started in legal field. And then immediately after completing my school of law, I joined Kautilya Law Academy back in Patna for preparation of judicial services. And then I was very lucky also that within 6 months, notification was out for 32nd Bihar Judicial Services, and it's been 2 years and today I'm here. So thank you ma'am. Now we'll proceed towards the judiciary exam. So Bihar Judicial Service exam basically has 3 stages, right? The first is pre, the second is mains, and the third is interview round. So we'll discuss about all the 3 rounds one by one. Sure. So first we'll start with the prelims. So what do you like to share about your prelims exam preparation? Okay, so talking about the preliminary exams strategy, what I personally feel, I'll express my personal experiences, what I have learned from this academy as well as my personal experiences. So when it comes to prelims exams, especially in Bihar, you should be very, very clear about your knowledge related to BEAR Acts. BEAR Act work as a bible for whole judiciary in Bihar. So आपको आपके जो BEAR Acts के जो कंटेंट्स होते हैं, जो इंडेक्स होती है, यू शुड बी वेरी वेल वर्स्ड अबाउट इट कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, कौन से सेक्शंस हैं, क्या चीजें हैं. दूसरी चीज ये कि व्हेन मूविंग फॉरवर्ड आफ्टर दिस थिंग BEAR Act, टेक्स्ट बुक की चीज आती है, तो I don't think that there is much need to refer multiple books. You should just restrict your source, but then make sure that if you are reading one textbook, your institution notes or your class notes, you should be master of your art. आप जितनी पढ़ाई कर रहे हैं उसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए और अपने resources को restrict कीजिए. However, in contrast to another side, don't restrict the quality of solving your objectives. You should solve as much objectives as much as you can. और जहाँ तक preparation की बात है, तो हमारे इंस्टीट्यूट में पैरेलल तैयारी चलती थी. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू. क्लास में ही सर बता देते थे कि ये देखो ये प्रीलिम्स हिट करेगा, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, एंड देन सिमिलरली इन इंटरव्यू कि ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पहले पूछे गए हैं इंटरव्यू में. तो ये होता है ऐसे. और उसके अलावा टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिए, टाइमिंग देखिए कि आप टाइम उसको मैनेज कर पा रहे हैं कि नहीं विद इन द गिवन टाइम. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रीलिम्स. तो यही रही है बेसिकली मेरी तैयारी प्रीलिम्स को लेकर के. सो दिस वाज ऑल about prelims, ma'am. So now we'll move towards the mains. So please share about the mains exam and how to choose the subjects and how you chose the subjects,
how to handle the pressure, how to write the answer as it is a subjective paper. Sure. So जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है मेंस आने के बाद इज हाउ टू चूज योर ऑप्शनल्स. मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई हैव कम अक्रॉस बिटवीन माय जूनियर्स. तो इसमें बेसिकली होता ये है कि आपको बहुत सारी बातें इधर उधर सुनने की जरूरत नहीं है. यू शुड ऑलवेज चूज अ सब्जेक्ट वेयर यू हैव कीन इंटरेस्ट, जिसमें आपको आंसर लिखने में मजा आता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है. तो सबसे पहली चीज तो ये है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड हैव अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर. जो पिछले 10 साल का क्वेश्चन पेपर है उसका एक एनालिसिस होना चाहिए. हमें हमारे इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड कराया गया था कि ये 10 साल के क्वेश्चंस हैं, आपके हर नोट्स के पहले लिखा होना चाहिए वो. व्हेन यू स्टार्ट राइटिंग द आंसर ना पिछले 10 साल का, आपको ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा ना कि किस क्वेश्चन में, किस सब्जेक्ट में यू आर एबल टू परफॉर्म बेटर. और जैसे ही आपको पता चलेगा ना कि आई एम एबल टू राइट ब्यूटिफाई आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और सब्जेक्ट, ब्यूटीफुल आंसर, तो उसी हिसाब से आप चूज कीजिए कि आई एम कंफर्टेबल विद दिस सब्जेक्ट. तो मेरा ऑप्शनल बेसिकली ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट था, उसके अलावा टॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट था और कमर्शियल एक्ट था. तो इन सब में कैसा होता है कि आप, मेरा पर्सनली कैसा था कि आई यूज्ड टू मेक माय डेली क्लास नोट्स. जो सर पढ़ाते थे एक एक चीज आई यूज्ड टू राइट इन माय नोटबुक, माय क्लास नोट. तो वो सारी चीजें फिर जो एक इंस्टीट्यूट से आपको प्रोवाइड कराया जाता है नोट्स, जो पहले से बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा एक टेक्स्ट बुक, इन तीनों को मिला करके आप अपना मेंस का नोट्स बनाते हैं. और मेंस का नोट्स बनाने के बाद ये भी नहीं कि नोट्स बना के रख दिया, यू शुड हैव अ प्रॉपर रिवीजन. और जैसे ही मेंस का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो, आई रिक्वेस्ट एवरी सिंगल स्टूडेंट कि आप प्लीज टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स स्कैरी. आई वाज आल्सो स्कैर्ड एट माय टाइम्स. मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि मतलब टेस्ट के एक दिन पहले फोबिया से तबीयत खराब हो जाती थी, तो आई यूज्ड टू क्राई. हम सर के पास भी जाते थे, रोते थे, लेकिन सर हमेशा ये बोलते थे कि भले यू आर द सिंगल स्टूडेंट, डजंट मैटर, अकेले भी टेस्ट देना है ना तो देना है, कितना भी गंदा मार्क्स आए टेस्ट देना है. तो टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. वंस यू गेट बैक ना आफ्टर गिविंग दैट टेस्ट, तो आपको समझ आएगा कि आपको कॉन्फिडेंस कितना बूस्ट हुआ है. और एक और चीज कि जैसे आपका प्रीलिम्स खत्म हो, दिस इज आई थिंक द मास्टर आर्ट विच आई गॉट टू लर्न फ्रॉम माई मेंटर एंड सीनियर्स फ्रॉम कौटिल्य इटसेल्फ, कि जैसे आपका मेंस खत्म हो रहा है उसके अगले दिन से यू शुड राइट एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस डेली. और ये आपको कोई बोलने नहीं आएगा, आपको खुद से वो लिखना पड़ेगा. लिखने से आपको डरना नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट आंसर्स. ओके, सो ये है, रिविजन करते रहिए, लिखते रहिए, अपने मेंटोर से टच में रहिए. और ये तो लॉ की चीज हो गई. और मैं बताना चाहूंगी व्यूअर्स को कि जैसे बिहार में स्पेशली वी हैव जीके जीएस का पेपर. तो लॉ के तो 17-18 सब्जेक्ट्स हैं ही, उसके अलावा जो जीके जीएस होता है, तो मनमोहन सर मेरे टाइम पे मतलब हमारे कोचिंग में पढ़ाते थे हम लोग को, तो बहुत अच्छा कवरेज मिला उनसे हमें कि जीके जीएस का क्या पोर्शन होता है, हाउ टू राइट आंसर्स. क्योंकि और जीके जीएस का कोई एंड नहीं है, इट्स एंडलेस. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड मेंटोर. और तो उसी तरीके से मनमोहन सर टेस्ट कंडक्ट किया करते थे, आंसर एनालिसिस करते थे कि आपको इसमें थोड़ा बेटर करना चाहिए या फिर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है, अच्छा नहीं है. तो मनमोहन सर के थ्रू हम लोग जीके जीएस कवर करते थे. और फिर जो अपना टेस्ट सीरीज होता था वो सर से आई वाज ऑलवेज इन कंसल्ट विद माय मेंटोर regarding this. So this was all about my mains paper. So thank you, ma'am. Now we'll move towards the last stage, which is interview round. We can also call it a personality test, as it is a very crucial stage. So ma'am, please give us some tips about the interview round. Okay. You well said, Viraj, that it's a more of a personality test round because आपका knowledge has already been tested in 2 like previous examination, prelims and mains. तो इंटरव्यू की जब बात आती है तो कुछ चीजें हैं essential जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी. प्रीलिम्स के लिए ना आप 2-liner नोट्स बनाना बहुत जरूरी है आपके रिवीजन के लिए, बिकॉज इट्स मोर देन लाइक 20 सब्जेक्ट्स, इट्स अराउंड 20 सब्जेक्ट्स. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि एग्जाम के 1 महीने पहले यू विल पिक अप एवरी सिंगल नोट्स एंड एवरी सिंगल बेयर एक्ट और उसको आप बैठ करके पढ़ रहे हैं. देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स 2-2 लाइन का जो आप पीटी के टाइम बनाते हैं, वो आपको प्रीलिम्स के समय भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है. और जब इंटरव्यू के लिए आप आते हैं तो अपने उस पुराने प्रीलिम्स के नोट्स को आप लेकर के आइए और उस हर 2 लाइन वाले आंसर्स को आप दोबारा से रिवाइज करिए, तो आपका इंटरव्यू का एक अच्छा कंटेंट रेडी हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंटरव्यू के लिए स्पेशली यू शुड बी वेल वर्स्ड विद करंट अफेयर्स, व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, बिकॉज वो न्यूज़पेपर में चीजें आती रहती है. जो पैनल में आपको मिलेंगे वहां पे जजेस जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने पढ़ा हो, तो मे बी आपकी पर्सनालिटी को चेक करने के लिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एकदम करंट अफेयर्स होते हैं. तो आप करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़िए इंटरव्यू के पहले, कंटेंट, लीगल कंटेंट के अलावा. और जो लीगल करंट अफेयर्स होता है, स्पेशली द लिस्ट ऑफ केस लॉज, उसको आप एक शीट बना करके रखिए सारे केस लॉज के बारे में. द लैंडमार्क,
जो लैंडमार्क हुए हैं और जो रिसेंट, दोनों के बीच में क्रोनोलॉजी क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो बेसिक चीजें हो गई कंटेंट वाली। जहां तक प्रेशर की बात है इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यू इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज वो आपको प्रिपेयर कर देता है फियर को हैंडल करने के लिए। हमारे कोचिंग में बहुत बेहतरीन मॉक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था। इवन लाइक मी माई सेल्फ, आई हैव अटेंड ऑलमोस्ट 6 to 7 मॉक इंटरव्यू सेशंस। तो 6-7 इंटरव्यू सेशन में कैसा होता है ना कि आपका जो फियर फैक्टर होता है ना, खत्म नहीं होता। इट्स वेरी प्रैक्टिकल। ह्यूमन टेंडेंसी है कि यू आर स्कैर्ड, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, लेकिन कंपैरेटिवली वो कम हो जाता है। और आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते हैं कि रूम के अंदर आपको अंदर एंटर कैसे करना है, हाउ टू ओपन द डोर, हाउ टू सिट देयर, हाउ टू एग्जिट, ऑल दीज थिंग्स। सो हम लोगों को इसके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में बताया गया था इंटरव्यू सेशंस के बारे में। तो ये दूसरी चीज हो गई जो आप डिसिप्लिन में आ जाते हैं। थर्ड, प्रेशर वाली चीज हो जाती है, तो आप मेडिटेट करिए, कॉन्सेंट्रेटेड रहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंटरव्यू राउंड। So thank you, ma'am. This was all about all the 3 stages of the preparation. Now I have some questions for you because I know you personally. So I really want you to answer these questions, that how to stay motivated during this whole process, as this is a very long process. So as you very correctly mentioned that it's a very long process. The vacancy was from 2022 if I'm not wrong, and then the result was out in 2024 December. It was 2 long years. It means a lot to stay like consistent while watching your colleagues, your schoolmates, your college mates doing hell lot of things in their life. तो इसके लिए स्पेशली जो सर ने मुझे बताया था, सर हमेशा बोलते थे ना कि यू नीड टू बी कन्फाइंड। एनी एस्पिरेंट, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, पहला एसेंशियल है ना कि आपको कन्फाइंड रहना बहुत जरूरी है। यू डोंट नीड टू एक्चुअली गिव अ लॉट ऑफ हिट टू पीपल कि व्हाट पीपल आर डूइंग इन देयर लाइफ, कौन क्या कर रहा है, कौन घूम रहा है, कौन पार्टी कर रहा है। इवन यू मस्ट बी वेरी अवेयर अबाउट, बिकॉज वी बिलोंग टू द सेम कॉलेज, कि पीयर प्रेशर कितना होता है, पीपल आर गेटिंग PPOs, सबके प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, एंड आई एम स्टिल देयर स्टडिंग एंड स्टडिंग, देयर इज नो रिजल्ट्स, बीइंग 2 years। तो वो सब ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, बिकॉज सी द काइंड ऑफ बैटल यू आर फाइटिंग फॉर। द बैटल इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, मे बी मतलब ठीक है, इट्स कम्प्लीटली ओके। डोंट काउंट लाइक डिफरेंट पीपल्स ओपिनियन एंड ऑल कि कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। स्टे कन्फाइंड, स्टॉप टॉकिंग अननेसेसरी। जिससे एग्जाम के बारे में बात नहीं करनी है, जिसको इसके बारे में आइडिया नहीं, उससे बात ही नहीं करना है आपको। बट स्टे कनेक्टेड एट द सेम टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स जो आपको बूस्ट करते हैं, उनसे कनेक्टेड रहिए। आप अपने मेंटोर से कनेक्टेड रहिए। उसके अलावा मेंटोर से कनेक्टेड रहने वाली बात आई वुड लाइक टू मेंशन हियर कि ये जो मैं जो भी चीजें बता रही हूँ, इट्स नॉट लाइक माई ओन एनलाइटमेंट हियर। आई वुड नॉट लाइक टू सीक एनी काइंड ऑफ क्रेडिट हियर। ये सारी चीजें मैंने सर के पास आने के बाद ही सीखा है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे तुमने बोला पहले कि मैंने इतने सारे इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं, तो अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन फॉर दिस, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, बिकॉज आई हैव लर्न फ्रॉम एवरी सिंगल इंटरव्यू। हर इंसान के सक्सेस स्टोरी से मैंने अलग अलग चीजें सीखी है। देयर इज समथिंग इन दैट पर्सन। आई वुड लाइक टू मेंशन ऑल्सो वंस अगेन पीयूष पायल मैम, 38 बिहार जुडिशियल सर्विसेज। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं उसमें, कि मेंटोरशिप एक बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो आपको ना एक सरेंडर मोड में रहना पड़ेगा। आपके मेंटोर जो करने के लिए कह रहे हैं, जो नहीं करने के लिए कह रहे हैं, आपको मानना पड़ेगा। यू कांट टेक चांस, यू कैन नॉट एक्सपेरिमेंट ऑन योर जर्नी। ओके, क्योंकि आपके जो मेंटोर है उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, आप पहली बार कर रहे हैं, वो पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सरेंडर योर सेल्फ टुवर्ड्स योर मेंटोर। उनकी बात को मानिए। तीसरी चीज जो मैंने सीखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। योगा, मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मेंटल सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग रहना। आपके जब मार्क्स कम आएंगे, मेरे भी आते थे, सबके आते हैं, जब मार्क्स कम आएंगे तो यू विल सिट एंड क्राई दैट डे, बट देन द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप यू विल हैव टू मेक योरसेल्फ बिलीव दैट आई कैन डू दिस। ओके, सो यू आर द रीजन बिहाइंड योर हेल एंड हेवन। तो आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। मोटिवेशन के लिए कोई और नहीं आएगा, आपको खुद में अपना मोटिवेशन रखना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल फॉर दैट। और स्पेशली मैं सब बच्चों को ये बोलूंगी कि स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, बिकॉज बहुत पीयर प्रेशर बनता है सोशल मीडिया पे। किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है, किसी के लाइफ में कुछ हो रहा है। स्टे अवे फ्रॉम पार्टी। टू एवरी स्टूडेंट, डोंट अटेंड पार्टीज, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। और ऐसा भी नहीं कि अपने सोल को टॉर्चर करना है। टॉक टू पीपल हु कैन हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, एंड दैट्स ऑल।
You cannot have all the perks from everywhere and then become a judicial officer. It's actually tough. But if everybody is doing, you can also do. लेकिन कुछ essentials हैं जो आपको follow करनी है. So that's all. Thank you, ma'am, for this wonderful conversation. And once again, congratulations. Thank you so much, Viraj. Thanks to you for having me here on behalf of the whole Kautilya family. Thank you. So this was all about Shweta Raj Lakshmi's success story, who qualified Bihar Judicial Service exam in a very first attempt. So if you like this conversation, please like the video, and if you have any comment or any suggestion, you can leave it in the comment section, and do subscribe the YouTube channel of Kautilya Law Academy if you want to see more content like this. Thank you for watching. Thank you.